We are doing the series from the book of Acts और हम एक श्रृंखला जो शुरू किए हैं प्रेरितों की पुस्तक से, on the new people of God. जो नए परमेश्वर के लोग हैं उनके बारे में। All right, and this morning, what does the new people of God look like? और परमेश्वर के जो नए लोग हैं वो कैसे दिखते हैं, आज सुबह देखेंगे। There are people defined by the presence and the power of the Holy Spirit. और ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा आकार दिए हुए हैं। So can someone read in English who's got a strong voice, and someone in Hindi, maybe Nane, come up here. Acts chapter 2, verse 1 to 13. और प्रेरितों की पुस्तक 2:1 से 13 तक कोई ना कोई अंग्रेजी में पढ़ेगा और कोई ना कोई हिंदी में पढ़ेगा। Okay, Rohan in English and Nane in Hindi. The Holy Spirit comes at Pentecost. When the day of the Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Now there was staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. When they heard the sound, a crowd came together in bewilderment, because each one had heard their own language being spoken. Utterly amazed, they asked, "Aren't all these who are speaking Galileans? Then how is it that each one of us hears them in our native language?" Parthians, Medes, and the Elamites, residents of the Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt, and the parts of Libya near Cyrene, visitors from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and the Arabs, we hear them declaring the wonders of God in our own tongues. Amazed and perplexed, they asked one another, "What does this mean?" Some, however, made fun of them and said they have had too much wine. जब पेंतिकोस्त पर्व का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक बड़ी आंधी के झोंके जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और जो वाणी का वरदान पवित्र आत्मा ने उन्हें दिया उसके अनुसार भिन्न भिन्न भाषाओं में बोलने लगे। पृथ्वी के सब देशों से आए हुए भक्त यहूदी उस समय यरूशलेम में निवास कर रहे थे। जब यह आवाज सुनी तो भीड़ लग गई, लोग घबरा गए क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे चकित रह गए और विस्मित होकर कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? हम पार्थी, मादी और एलामी लोग, मेसोपोटामिया, यहूदा और कम्फूदिया, पोंतुस और आसिया, फ्रूगिया और पंफुलिया, मिस्र और कुरेने के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा नौ यहूदी प्रवासी, क्रेती और अरबी लोग, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें परमेश्वर के महान कार्यों की चर्चा करते सुन रहे हैं। वे सब चकित रह गए और दुविधा में पड़कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या बात है? परंतु दूसरों ने उपहास करते हुए कहा, ये तो मदिरा पीकर मतवाले हो रहे हैं। Amen. Father, we just want to pray that you will help us to catch what the apostles tried to show in the book of Acts about who we are. परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं और प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु की हम उन चीजों को पकड़ सकें जो प्रेरित हमसे बात करना चाहते हैं प्रेरितों की पुस्तक से। We pray, Father, that you would help us be a people that find the Spirit of God restored in the church. और परमेश्वर हमारी मदद कीजिए ताकि हम ऐसे लोग बन सकें कि हम परमेश्वर की आत्मा को नई तरीके से हमारे बीच में स्थापित होते देख सकें And restored in Christian life as something of normal Christian living. और हमारे जीवनों में जो हमारा मसीही जीवन है उसमें पवित्र आत्मा की चीजें स्थापित हो सके। Okay, so we are looking at the book of Acts. The theme is the new people of God as और- seen by the apostles. और हम प्रेरितों की पुस्तक पढ़ रहे हैं और जो शीर्षक है कि नए लोग परमेश्वर के,
All right, and here's the day of Pentecost when the Spirit of God comes in for the first time, and then what the apostles begin to show right through the book of Acts. और पेंतिकोस के दिन की बात हो रही है जब पहली बार पवित्र आत्मा उन पर उतरती है और उसके बाद वो क्या क्या करते हैं। All right, and we see that Jesus told his disciples, go into the world, but don't go yet, wait. और यीशु ने कहा कि जाओ, मैं पूरी दुनिया में फैल जाओ, लेकिन अभी नहीं। All right, wait for the promised gift the Father has promised. और उसका इंतजार करो जो पिता ने आपके लिए एक उपहार छोड़ा है, आपको वादा किया है। So Jesus was saying, you've got to go, but not yet till you get the gift of the Holy Spirit. और यीशु ने कहा कि तुम्हें वहां जाना है, लेकिन अभी नहीं, जब तक तुम्हें वो पवित्र आत्मा का उपहार नहीं मिलता जो पिता ने हमसे वादा किया है। And somehow we've got to see that what the apostles have had revelation of, they're trying to show the church that it is so important that the Holy Spirit is central to church life. और परमेश्वर की तरफ से पवित्र आत्मा जो हमारे पे आती है, जो प्रेरित हैं, वो बताना चाहते हैं कि वो हमारे जीवनों के मध्यस्थ में होनी चाहिए। The Holy Spirit is central to us being Christians. और हमारे मसीह जीवन में पवित्र आत्मा मध्यस्थ में होनी The Holy चाहिए। Spirit is central to being the new people of God. और पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर के लोगों के मध्यस्थ में होनी ही And चाहिए। I trust this morning we will be stirred afresh and renewed afresh. और आज की सुबह मेरी आशा है कि हम एक बार फिर से उत्तेजित हो जाएंगे इस बारे We में, will embrace and recognize this plan of God for his new people. और हम परमेश्वर के इस जो हमारे लिए वादा है उसको पकड़ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे उससे। And so that day, or the day of Pentecost, this is fire, tongues of fire began to settle on each of the disciples, and they could see it. और पेंतिकोस के दिन जो आग के द्वारा परमेश्वर की जुबान थी वो चेलों पर आने लगी और लोग देख पाए There उसको। was the sound of a mighty rushing wind. और एक बहुत ही बड़ी आवाज आई थी जैसे आंधी आती है। And before they knew it, they were all speaking in tongues. और इससे पहले कि वो जान और इससे पहले कि वो पहचानते, वो पवित्र आत्मा की नई नई भाषाओं में बात कर रहे थे, जिस तरह से हम बात करते हैं। Amen. आमीन। Imagine that. सोचिए इस Imagine बारे a में। whole church. They were 120. Imagine a whole church speaking in tongues. और जानिए कि 120 लोग अगर पवित्र आत्मा की भाषा में बात कर रहे And हैं, when they spoke in tongues, और जब उन्होंने पवित्र आत्मा की भाषा में बात किया, it wasn't restricted to the room. और वो सिर्फ उस कमरे तक सीमित नहीं रही, The sound was so loud. और वो जो आवाज थी वो इतनी गहरी बड़ी थी। That's the church. वो कलीसिया है। They spoke in tongues. We like to keep it quiet so that the neighbors don't hear. और हम उसको शांत रखना चाहते हैं ताकि हमारे पड़ोसी ना सुन सकें। But they were speaking so loud that everyone around could hear. और वो इतनी जोर से बात कर रहे थे कि आसपास के सब लोग उसे सुन पा रहे And they थे। came running. What's going on? और वो भागते दौड़ते आए पूछने के लिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। Amen. आमीन। That's the church full of the Holy Spirit. और वो एक कलीसिया है जो पवित्र आत्मा से भरी हुई है। That people will come running, say, "What's going on with और- you mad people?" और लोग जो है वो भागते हुए आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है, तुम पागल हो गए हो क्या। Amen. आमीन। And then Peter stands up to explain right from the beginning. और पतरस जो है वो खड़ा होता है और बताता है उनको कि शुरुआत से क्या बोला गया था। This is not something new. और वो कुछ नई बात नहीं है। It has a reference point. Let's go back. और वहां पे उसका एक दृष्टांत पहले बताया गया है, वहां पे जाके देखते हैं। Amen. आमीन। So firstly, we see the Holy Spirit in the Old Testament. और सबसे पहले हम पवित्र आत्मा को ढूंढेंगे पुराने नियम में। The Holy Spirit would come on few people, परमेश्वर की पवित्र आत्मा सिर्फ कुछ ही लोगों पर आती थी, and they would do mighty acts, और वो बड़े बड़े काम and करते they थे, would bring victory for the people of God. और वो परमेश्वर के लोगों के लिए विजय लेके आते थे। All right. Tells about Samson in Judges chapter 14 verse 6. और सैमसोन के बारे में बात करते हैं न्यायों की पुस्तक में। Spirit of the Lord came upon him powerfully so that he tore the lion apart with his bare hands as he might have torn a young goat. और ये बताता है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ जब शमशोन पे आता है तो वो एक शेर को पूरा फाड़ देता है जैसे कोई आदमी बकरी को फाड़ रहा हो। I don't know how many of you can tear a young goat either. और मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग एक बकरी को भी फाड़ सकते हैं, He tore a lion apart. लेकिन उसने एक शेर को फाड़ दिया। I don't think Samson had many muscles. I don't think so. और मुझे नहीं लगता कि सैमसन के पास इतनी ज्यादा मसल You थी, know, but it says the Spirit of the Lord came upon him. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आत्मा उस पर आ गई। And this lion was charging at him.
और वो जो शेर था वो उसको आ रहा था खाने के लिए, Spirit of the Lord came upon him. और परमेश्वर की आत्मा उस पर आती है He takes the lion, और वो शेर को लेता है और कहता है, just like that. बिल्कुल ऐसे ही। Amen. आमीन। But what I want us to see, लेकिन हम क्या देखना चाहते हैं यहाँ पे, when the Spirit of the Lord comes, जब परमेश्वर की आत्मा हम पर आती है, something happens to कुछ ना men कुछ होता है। or women on whom the Spirit comes. आदमी या औरत, कुछ ना कुछ होता है जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा हम पे आती है। All right, and it tells us of Saul और सौल के बारे में जब बताता है in ये, 1 Samuel 11. और 1 शमूएल 11 में, Okay, there were the Ammonites came and threatened Jabesh Gilead of Israel. और जबीएश गिलियद को एमोनाइट्स ने आकर धमकी दी थी, When Saul heard it, और सौल ने ये बात को it सुना says he was mad. और उसने, वो पागल जैसा हो गया, He got angry. वो बहुत गुस्से में आ गया। And then it says the Spirit of God came powerfully upon him. और फिर ये लिखा है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा सामर्थ से सौल के पर आई, He burned with anger. और वो जल रहा था गुस्से में। And he went and slaughtered the Ammonites. और फिर वो जब गया वहां पर, उसने एमोनाइट्स को एकदम खत्म कर दिया। How? कैसे? Spirit of the Lord came upon him. परमेश्वर की पवित्र आत्मा उस पर आई। Amen. आमीन। 1 Samuel 16 tells us 1 शमूएल 16 हमें बताता है, that Samuel the prophet goes and anoints David. और शमूएल जो है वो जाता है और दाऊद का अभिषेक करता He है, anoints David in the presence of his brothers. और उनके भाइयों के सामने दाऊद का अभिषेक होता And it है। says from that day on the Spirit of the Lord came powerfully upon David. और फिर वो लिखा है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा सामर्थ से दाऊद के ऊपर आ गई। Now earlier we saw the Spirit of God came in an event to tear the lion. और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जैसे कुछ चीज होती है कि जब उसने शेर को फाड़ा तब पवित्र आत्मा Right. आती है। But now for David it's saying from that day on the Spirit of God came upon him. लेकिन यहाँ पे लिखा है कि उस दिन से आगे परमेश्वर की आत्मा दाऊद के पास थी। We must recognize. हमें इस बात को समझना होगा। This is what Peter gave. He went backwards and started talking about it. और पतरस जो था वो पीछे गया पुराने नियम में और उसके बारे में बातचीत करना शुरू किया उसने। We must recognize what happens when the Spirit of God comes. हमें इस बात को जानना है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा जब हम पर आती है तो हमें क्या होता है। Okay, 1 Samuel 10:6 says, 1 शमूएल 10:6 कहता है the Spirit of the Lord will come powerfully upon you, कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा सामर्थ से तुम्हारे ऊपर आएगी and you will prophesy with them. और तुम भविष्यवाणी करोगे उनके साथ। And then this, और उसके बाद, and you will be changed into a different person. और तुम एक नए इंसान की तरह बन जाओगे। Amen. आमीन। So what it's showing वो क्या बता रहा is है when the Spirit of God comes, we get changed into different people. कि जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम पर आता है तो हम अलग इंसान बन जाते हैं। But in the Old Testament, the Spirit of God came on very few. लेकिन पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा सिर्फ कुछ ही लोगों पर आया, And some of them on whom the Spirit came, they longed for something more. और जिनके In the Old ऊपर भी पुराने नियम में जिनके ऊपर भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा आया, उन्हें चाहते कि परमेश्वर और भी कुछ कर हमारे साथ। Numbers 11:29, this is what Moses said. और गिनती की पुस्तक में लिखा है, मूसा कहता है, People were upset because others were prophesying. और लोग जो थे वो नाराज हो गए थे कि कुछ ही लोग सिर्फ भविष्यवाणी कर रहे They थे were loyal to Moses. और वो मूसा के साथ बंधे हुए थे। And when they told Moses, और जब उन्होंने मूसा को बताया these guys are prophesying. कि वो लोग तो भविष्यवाणी This is कर रहे what हैं, Moses says, Numbers 11:29. और गिनती की किताब 11:20 कहता है, और मूसा ने उस समय कहा, Are you jealous for my sake? क्या तुम मेरे से चिढ़ रहे हो? I wish that all the Lord's people were prophets and that the Lord would put his Spirit on all of them. और मूसा उस समय कहता है कि अगर मैं चाहूं तो परमेश्वर के सब जनों के ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा होना चाहिए और सब लोग भविष्यवाणी करने चाहिए। So you find leaders in the Old Testament, the Spirit came and they were able to do things. और जब हम पुराने नियम में देखते हैं कि जब अगुए जो पुराने नियम के हैं उनके ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आता है, Hearts, they knew this work is too big. और वो समझ पाते हैं कि ये बहुत बड़ा काम है, And you see the cry of their hearts. और जब आप उनके आवाज सुनते हैं, I wish all God's people had the Spirit on them. और जैसे मूसा कहता है कि मैं चाहूं तो सबके पास पवित्र आत्मा होना चाहिए परमेश्वर का, And that was the promise of the future. और वो भविष्य के लिए एक वादा परमेश्वर ने दिया था। Chapter 2, verse 28. और योएल की पुस्तक 2 में लिखा है, Joel prophesies.
जोएल जो है वो भविष्यवाणी करता है Prophesies that a time is coming when the Spirit of God will come on everyone. और एक ऐसा समय आ रहा है जहां परमेश्वर की पवित्र आत्मा हर एक जन के पास होगी And afterward, I will pour out my Spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. और उस Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. और Even on my servants, both men and women, I will pour out my Spirit on those days. और उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे Amen. Amen. आमीन। And so these mighty men and women of the Old Testament, और जो ये सामर्थी लोग थे आदमी और पुरुष और स्त्रियां जो पुराने नियम के they are heroes of faith. वो ऐसे विश्वास के हीरो हैं And we admire them. और हम उनकी सराहना करते हैं And yet, लेकिन फिर भी when speaking of the Old Testament guys, जब हम पुराने नियम के लोगों के बारे में बात करते हैं we see the greatest was John the Baptist. और हम देखते हैं कि सबसे महान जो थे वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले थे And then it said, but he who is in the king, he who is least in the kingdom of God will be greater than John the Baptist. और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के जो राज्य में सबसे जो छोटा है वो भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा होगा I mean, that should stir us. ये चीज हमें उत्साहित करने देनी चाहिए Because the apostles were bringing revelation of who is the new people of God. और क्योंकि जो प्रेरित थे वो हमें ये बताना चाह रहे थे कि परमेश्वर के नए लोग कैसे दिखेंगे Do you believe? क्या आप विश्वास करते हैं You believed in Christ? क्या आपने विश्वास किया है यीशु में Who are you compared with the greatest in the Old Testament? तो किसके साथ आपकी तुलना करी गई है पुराने नियम के लोगों में He who is least जो सबसे छोटा है will be greater. वो उससे भी महान होगा That's the new people of God. और वो हैं नए लोग परमेश्वर के You see, the apostles और ये देखिए कि जो प्रेरित थे were getting revelation from the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से दृष्टांत पा रहे थे Amen. आमीन And so when Jesus told them, wait, और जब यीशु ने कहा कि रुको and then he tells them this, और फिर वो उनको ये कहता है John baptized you with water. कि यूहन्ना ने आपको बपतिस्मा दिया पानी से You believed in me. John baptized you with water. और आप इस बात को विश्वास करेंगे कि यूहन्ना ने पानी का बपतिस्मा दिया But that's not enough. लेकिन वो काफी नहीं है But in a few days, you will be baptized in the Holy Spirit. लेकिन कुछ ही दिनों में तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा And this is what happens then, he says. और उसके बाद ये होता है In Acts 1:8, he says, you will receive power और when the प्रेरित Holy Spirit comes upon you. और प्रेरित 1:8 में जैसे लिखा है कि तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा Amen. आमीन You will receive तुम्हें मिलेगा what? क्या Huh? क्या मिलेगा Many Christians want this. They want to feel, the Holy Spirit came. I feel nice. और बहुत सारे मसीह ऐसा सोचते हैं कि हाँ वो पवित्र आत्मा मेरे पर आ गई मुझे अच्छा लग रहा है I spoke in tongues. Ribakashandarabara. I spoke in tongues. और मैंने पवित्र आत्मा की भाषा में बात किया रिबा रबा सांदा रबा Then they don't speak again. और फिर वो कभी बात नहीं करते But what the scriptures is saying, लेकिन जो परमेश्वर का वचन कह रहा है when the Spirit comes, जब परमेश्वर की आत्मा आती है you will receive something. आप कुछ पाएंगे सामर्थ And you say that in English first. और अंग्रेजी में पहले कहेंगे I'm going to say 1, 2, 3, and you say power. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, now in Hindi, what is the word samarth, right? या हिंदी में 1, 1, 2, 3. सामर्थ Wow. I mean, if you really believe that, अगर आप विश्वास करते हैं सही में that's the new people of God. और यही है नए लोग परमेश्वर के Amen. आमीन Amen. And when you get this power, what will you do? You will tear apart lions. Amen. और जब आपके पास सामर्थ आएगा तो आप क्या कर पाएंगे आप शेरों को फाड़ पाएंगे Amen. आमीन Amen. Anything. You know what I told the leaders? I told the leaders yesterday, don't just say amen. One day I'll say amen to this.
Someone comes and says something else, you say amen to that also. It's exact opposite. You're not reading the Bible. और अब कल नाइजल ने अगुओं से ये कहा कि आज किसी चीज के लिए तुम आमीन बोलते हो, कल उसके विपरीत चीज के लिए भी आमीन बोल दोगे। वो इसलिए क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है, तुम अपनी बाइबल नहीं पढ़ते हो। You will receive power for what? What does it say in that scripture? और क्या कहता है वो वचन कि तुम्हें किस चीज के लिए सामर्थ्य मिलेगा? You will be my witnesses. That's the power. और ये सामर्थ्य आपको मिलेगा कि तुम मेरे लिए यहाँ पर विटनेस बनोगे, साक्षी बनोगे। Amen. All right, don't try and go in the jungle to tame one lion. You might get torn up. और जंगल में ना जाइए शेर को फाड़ने के लिए, हो सकता है शेर आपको फाड़ देगा। But you will be witnesses. लेकिन तुम साक्षी बनोगे, Amen. गवाह बनोगे। In Jerusalem, hallelujah. यरूशलेम में हालेलुया, In Malad, hallelujah. इन मलाड हालेलुया, And for the rest of my life in Malad, hallelujah. और पूरी जिंदगी में मलाड में हालेलुया। Praise God, praise God. Okay, now you're learning. Now you're learning. Okay. So if someone preaches, you will immediately say, no, that's not right. Very good. और जब कोई भी ऐसा प्रचार करेगा तुम बोलोगे नहीं, सही नहीं है। वेरी गुड। We start in Jerusalem, but our hearts are right to the ends of the earth. और हम यरूशलेम में शुरुआत जरूर करते हैं, लेकिन हमारा दिल जो है वो दुनिया के कोने कोने में है। And even if we don't go to the ends of the earth, but our hearts are there. और हम हो सकता है कि दुनिया के कोने तक पहुंचे नहीं, लेकिन हमारा दिल वहां तक है। In April, we'll be taking a global offering. और That's where our heart is. और अप्रैल में एक पूरे देशों के लिए हम एक दान लेंगे, वहां पे हमारा दिल है। Penang, JW, last time you saw that video, he's going into Penang to plant a church. I told him as Harvest of Grace, we're going to take an offering for you. और JW जो इंसान है वो पेनांग में कलीसिया ले रहे हैं, हमने उनको कहा कि हम तुम्हारे लिए एक दान लेंगे। Amen. आमेन। Come on. Power, power. आमेन। You see, to be witnesses, it also involves a dan. और गवाह बनने के लिए आपको दान भी देना पड़ेगा। Okay, the offering. ऑफ And so we're ready in the same, how we said samarth, we can say offering as well. और जिस शक्ति से हमने कहा था सामर्थ, उसी शक्ति से हम कहेंगे दान। Amen. Amen. ऑफरिंग। All of us are witnesses. हम सब गवाह हैं। Holy Spirit brings change. परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे दिलों में बदलाव लाती है। Opens the heart of the church to see the new people of God, that we reach Jerusalem, Mumbai, where we are, but our hearts have to extend right to the end. और परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे दिलों को इस तरह से खोल देती है कि हम सिर्फ जेरूशलेम जो हमारे लिए मुंबई है, सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रहते, हम दुनिया के कोने तक सोचते हैं। Amen. आमेन। Witnesses. गवाह। But it's not one event. लेकिन सिर्फ एक ही बार ऐसा है, वो What नहीं they होगा। were showing, वो क्या बता what रहे the थे, apostles were showing, क्या बता रहे थे was प्रेरित, from today, कि आज से this is the new people of God. कि ये नए लोग होंगे परमेश्वर The के, chief characteristic of the new people of God is the Holy Spirit. कि परमेश्वर के नए लोगों की पहचान होगी परमेश्वर की पवित्र आत्मा। All of us must be baptized in the Holy Spirit. हम सबको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। All of us must be empowered by the Holy Spirit. हम सबको परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। You see, when the Spirit of God touches, Jesus says this, the Spirit comes on us, but rivers of living water will flow from you. और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें आती है तो जीवित झरने हमारे से उमड़ने शुरू हो जाते हैं। Amen. आमेन। That means wherever we go, इसका मतलब कहीं पे भी कभी भी हम we may जाएंगे, have the most difficult of circumstances in our lives. और सबसे मुश्किल परिस्थिति भी क्यों ना हो हमारे सामने, But wherever we are going, even if we have this most difficult circumstance in our life, और ऐसा क्यों ना हो कि हमारे जिंदगी में सबसे मुश्किल समय हमारे साथ चल रहा होगा, there's a river flowing inside of us. एक उमड़ता हुआ झरना हमारे अंदर से निकल रहा है। And if we meet somebody else और किसी और से मिलते हैं who's having difficulty, जिसको परेशानी हो रही है, we got something to give. हमारे पास कुछ है देने के लिए। आमेन। That is the people empowered by the Spirit. और वो ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ चल रहे हैं। We give life. हम जीवन देने वाले लोग हैं। Amen. आमेन। Can you tell your neighbor, listen, that's who you are. You give life.
और आप अपने पड़ोसी को कहिए कि आप जीवन देने वाले लोग हैं। Gives life. Amen. Amen. आमीन। You see what the apostles were showing, जो प्रेरित हमें क्या दिखाना चाह रहे थे, that these people, these new people will be unlike any people that has ever been seen before. और प्रेरित हमें ये बताने जा रहे थे कि जो लोग यहाँ पे हमें दिख रहे थे, ऐसे लोग हमने कभी भी देखे ही नहीं थे। A whole people empowered by the Spirit of God, सब लोग परमेश्वर की पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे हुए, not hiding in their homes. और अपने घरों में छुप के नहीं बैठे थे, Empowered. परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए। Other people just think, chalo, Sundays come, let me show myself in church on Sunday. और सिर्फ ऐसे नहीं कि चलो अब संडे आ गया मैं चर्च पहुंच जाता हूं। That's not church. वो कलीसिया नहीं है। Churches, you're coming here, now you're empowered, and you go in the week and say, let me change the world. और कलीसिया वो जगह नहीं है जहां पर हम सिर्फ आते हैं, ये वो जगह है जहां पर आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं दुनिया को बदलूंगा। Amen. This is what the apostles were showing. यही परमेश्वर, यही प्रेरित हमें बता रहे थे। You know, Jesus told the apostles, I can't tell you before I die, I can't tell you because you won't understand. और यीशु ने जब चेलों से कहा कि मैं जब तक मारा नहीं जाता तब तक मैं तुम्हें बता नहीं सकता क्योंकि तुम नहीं समझोगे। John 16, Jesus tells them that. यूहन्ना 16 में ये परमेश्वर यीशु कहते हैं। But he says, but when he, the Spirit of truth comes, he will reveal to you all things. और वो कहते हैं कि जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सच्चाई उतरेगी तब वो तुम्हारे सामने इस चीज का खुलासा करेगी। And the apostles understood who the new people of God were, what they never saw before. और प्रेरितों को वो बात समझ आ गई कि परमेश्वर के नए लोग Okay. कैसे होंगे, कौन होंगे। One of the key things, that's my first point I finished. Sorry. और पहला पॉइंट जो है ये खत्म किया है। What is the first point if you're writing notes? Baptized in the Holy Spirit. और पहले जो पॉइंट है वो ये है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलना। Yeah. The second point, दूसरी भाग, as the Holy Spirit revealed to the apostles, they showed what is the foundation of this new people of God. और जैसे पवित्र आत्मा ने उस चीज का खुलासा किया तो लोगों को समझ में आया कि इस चीज की नींव क्या है। They now got a revelation of the cross और- and the resurrection. और उनके पास अब जो प्रकाश आया कि ये क्रूस क्या है और पुनर्जन्म क्या है। They now understood. Before Peter would say to Jesus, no, you'll never die. और पहले पतरस कहता था कि हम नहीं, तुम यीशु कभी मरोगे नहीं। But now they understood अब उन्होंने समझ लिया the meaning of the cross, कि उसका मतलब क्या है क्रूस का, the meaning of the resurrection, मतलब क्या है पुनरुत्थान का, and its relevance for us as the new people of God. और हमारे लिए उसकी क्या महत्वपूर्णता है परमेश्वर के नए लोग होने के नाते। And he says this, और वो कहता है, when in him, in Jesus, और जब यीशु में, when he died, जब वो and मरते when हैं he was resurrected, और जब वो उठाए गए, we died. हम भी मरे, We were resurrected. हम भी पुनरुत्थान में आए। They devoted themselves to the apostles' teaching. और उन्होंने प्रेरितों की जो पढ़ाई थी उसमें अपने आप को तल्लीन किया। Now, please let two significant things here, what they tried to bring revelation to the new people of God. और दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो प्रकाश वो लेके आए परमेश्वर के नए लोग होने का समझ में। He's saying Jesus died उन्होंने कहा यीशु की मौत हुई for all our sin. हमारे सारे पापों के लिए। He completely paid the penalty of our sin, which was death. और वो जो हमारे लिए जो हमारे पाप का जो दाम था वो मौत था और यीशु ने उसको पूरी तरह से चुका दिया। Okay, so he completely, whatever the law prescribed, it was death for sin. Jesus fully paid for it when he died. और जिस तरीके से न्याय ने बताया था कि जो जो पाप की पाप का जो दाम होगा वो यीशु ने पूरी तरह से चुका दिया। And he died for us. और वो हमारे लिए मारा गया। And so now here's the doctrine. तो यहाँ पर समझिए, ये समझने की चीज है। We too died with him.
और ये सिद्धांत है कि हम भी यीशु के साथ मारे गए to all sin. सब पापों के लिए। That means we are no longer in Adam as sinners. और इसका मतलब ये है कि हम अब वो आदम के साथ पापी नहीं रह गए हैं, We've been crucified with Christ. हमें परमेश्वर यीशु के साथ सूली पर चढ़ा दिया गया है। Something happened to Christ. और यीशु को कुछ हुआ था। The second part, दूसरी बात, he was resurrected. उन्हें जिलाया गया The law said, for sin, someone must die. और न्याय ने कहा कि किस पाप के लिए किसी न किसी की मौत होनी चाहिए। Jesus died for all of us. यीशु हम सब के लिए मारे गए, But something more, लेकिन और भी कुछ, he rose from the grave. वो उस कब्र से उठ गए। Now, this is beyond the law. The Lord cannot say anything about this. The law can only say up to the maximum is death. But Jesus has risen beyond death. और कानून का जो आखिरी भाग है वो कहता है कि यहाँ पे मृत्यु है, लेकिन कानून के आगे भी यीशु मसीह उठ गए और वो मुर्दों से जिलाए गए। And in the place where Jesus has risen, in this realm where he has risen, और जब यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गए, जब वो वापस से जी उठे, there is no law, there is no sin. और वहां पर फिर कोई कानून नहीं है, कोई पाप नहीं है, And he rose up to this. और वो उसके आगे ऊपर खड़े हो Here's गए। the second part of the doctrine. और ये सिद्धांत का दूसरा भाग है The new people of God. कि परमेश्वर के नए लोग, We are raised with him. कि हम उनके साथ, हमारा पुनरुत्थान हुआ है Beyond the realm of the law, beyond sin, and beyond death and punishment. कानून, पाप और सजा के ऊपर हम उससे उठाए गए We हैं, are no longer in Adam. और हम अब आदम के साथ नहीं हैं, Are in Christ Jesus. हम प्रभु यीशु के साथ हैं। आमीन। You used to be a slave to sin. You're not a slave of sin. Maybe you sin now, but you're not a slave to sin. और अब आप पाप के बंधुआई में नहीं है। हो सकता है कि आप पाप करते हो, लेकिन आप उसकी बंधुआई में नहीं है। Amen. आमीन। You're a slave of righteousness in this realm. और आप सिर्फ धार्मिकता के गुलाम हो। How many of you, when you sin, और कितने लोग जब हम पाप करते हैं, you feel bad? आप बुरा लगता है? Put your bad. You see, why do you feel bad? क्यों बुरा लगता है आपको? Because you're a slave to righteousness now. क्योंकि अब आप धार्मिकता के गुलाम हैं। Before you would sin, you never felt bad. और उससे पहले आप पाप करते थे, आपको बुरा नहीं लगता था। And the apostles' doctrine is trying to show who we are as the new people of God. This is what the Spirit of God reveals. और जो प्रेरित हैं वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये है पवित्र आत्मा के नए लोग। Romans 6:14 says, रोमियो 6:14 कहता है, for sin shall no longer be your master, क्योंकि पाप अब तुम्हारा मालिक नहीं रहेगा, because you are not under the law now. क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, You are in this new realm of the grace of God. और अब तुम अनुग्रह के अधीन हो। Amen. आमीन। Listen, we're not under law. सुनिए, आप कानून के अधिकार में नहीं है। So when we did wrong before, the law banged us. और इससे पहले हम अगर गलत किया होता तो व्यवस्था हमारे ऊपर The एक law थप्पड़ मारती थी, accused us. और व्यवस्था जो थी हम पे दोष लगाती The थी, law judged us. व्यवस्था हमें न्याय करती थी। So today, even as Christians, when we sin, the law has no power. और अब जब हम मसीह हैं, अगर हम पाप करते हैं तो व्यवस्था जो है उसकी कोई सामर्थ्य नहीं है हमारे ऊपर, Cannot be accused. वो हमें दोष नहीं लगा सकता। That's why Romans 8:1 says, there is therefore now no condemnation और- to them who are in Christ Jesus. और इसलिए रोमियो की पुस्तक 8 कहता है कि अब जो लोग परमेश्वर यीशु मसीह में हैं उन पर कोई दोष नहीं लगाने वाला है। Amen. आमीन। Sin shall not be your master. और पाप तुम्हारा मालिक नहीं रहेगा। Romans 6:14. और रोमियो 6:14 कहता है। So here's what the apostles are saying. और यहाँ पर ये प्रेरित क्या कह रहे हैं? If you sin, अगर आप पाप करते हो it's because you've chosen to. क्योंकि तुमने चुना है उसको पाप करने Sin को। doesn't have power over you. पाप का कोई सामर्थ नहीं है तुम्हारे ऊपर, You've made the choice. तुमने ऐसा चुनाव किया Because है, the power of God is inside you. क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ Amen. तुम्हारे अंदर है। So what he's saying is the whole Old Testament approach to God is finished.
और ये बताने की कोशिश यहाँ पे है कि जो भी पुराने नियम की सोच थी परमेश्वर के लोगों के बारे में वो अब खत्म हो चुकी है। Jesus, when he hung on the cross, he says, "It is finished." और यीशु जब क्रूस पर चढ़ाए गए तो उन्होंने ऐसा कहा कि अब ये खत्म हुआ। And the apostles are bringing this revelation to the new people of God, saying, that approach to the law, it's finished. Don't go back. और जो प्रेरित है वो व्यवस्था का ये लेके आ रहे हैं बात आपके लिए कि पहले जो होता था व्यवस्था में हम दोष लगाए जाते थे, अब वो खत्म हुआ। Amen. Romans 8:13 says, रोमियो 8:13 कहता है if you live according to the flesh, you'll die. कि अगर तुम अपने शरीर के बदाए पे चलोगे तो तुम मौत के पास जाओगे। It's not making a reference to the law here. और यहाँ पर व्यवस्था के बारे में बात नहीं हो Talking रही, about living in our body, the flesh. और वो बता रहा है कि हम किस तरीके से अपने शारीरिक भावनाओं में जीना चाहते हैं। Living according to the demands of your body. और अगर तुम अपने शरीर की मांगों के हिसाब से चल रहे हो Will die. आप मरोगे। But he says, but if by the Spirit लेकिन कहता है कि अगर आत्मा के द्वारा you put to death the misdeeds of the body, कि अगर तुम उन चीजों को जो गलत हैं तुम्हारी शरीर में उनको मौत के घाट उतारते हो you will. तुम जियोगे। Amen. आमीन। So what is he saying? He's now talking about the life of the Spirit. और यहाँ पर पवित्र आत्मा के साथ जीने के बारे में बात हो रही It's है। not enough to just know you're wrong, but you've got to be involved with the Spirit. और सिर्फ इतना जानना काफी नहीं है कि हाँ मैंने गलत किया, अब पवित्र आत्मा के साथ मिलकर काम करना है। In this new people of God, और जो ये नए लोग हैं परमेश्वर के, because we've received such grace, कि हमने ऐसा अनुग्रह पाया है, there's a way we handle people. अब एक तरीका है जिससे हम लोगों से बर्ताव करते हैं, There's a way we handle our children. और एक तरीका है जिस तरीके से हम अपने बच्चों से बातचीत करते हैं। Please listen. सुनिए, Galatians 6:1. गलातियों 6:1 कहता है, Brothers, भाइयों if someone's caught in a sin, अगर कोई पाप में पकड़ा जाता है, now listen, you who live by the Spirit, you who are in this realm, और तुम जो आत्मा के द्वारा चलाए जाते हो, जो तुम ऐसा सोच रखते हो, restore that person gently. और प्रेम से उस भाई को पाप से दूर लेके जाओ। Amen. So many of us still like to bring the law and say, you, and accuse. That is not the Spirit. और हम में से बहुत सारे लोग अभी भी व्यवस्था को सामने लेके आते हैं और कहते हैं तुमने ये गलत किया है। Watch yourselves, आप अपने आप को देखिए, or you may be tempted. और हो सकता है कि आप पर सतावा है। Watch yourself. हमें अपने आप को ध्यान रखना होगा How are we treating people? कि किस तरीके से हम लोगों से बर्ताव कर रहे हैं। Amen. आमीन। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? And this is what it says in Galatians 5:22, the fruit of the Spirit. और गलातियों 5:22 में परमेश्वर की पवित्र आत्मा के जो फल है उनके बारे में बात When करता we है। live by the Spirit, जब हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ here's जीते हैं, what comes up: ये बाहर आता है। love, प्रेम, joy, खुशी, peace, शांति, kindness, and goodness, and self-control. Okay, whatever. Now let's move on. Learn, church. Learn. This is the new people of God. Learn to live by the Holy Spirit. परमेश्वर के लोगों परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ जीना शुरू So करो। what the apostles were showing और प्रेरित क्या हमें दिखा रहे थे? is this ये is a community alive. और in the ये Spirit. एक ऐसे लोग हैं जो जीवित हैं। And so when we're going into new places, और जब नई जगहों पे हम जाते हैं, when we're going into the Philippines, और जब फिलीपींस में जाते हैं, all right, when we're going into Nanded, और जब नांदेड़ की तरफ जाते हैं, wherever we are going, जहां पर भी हम जाते हैं, this is what we teach, ये हम सिखाते हैं the apostles' doctrine. कि हम प्रेरितों की जो Who बताई हुई चीजें, the new people of God are. कि लोग कौन है, वो नए लोग कौन हैं, And they begin to see, wow, this is who we are. और वो देखना शुरू करते हैं, हाँ हम ये लोग हैं, And we change another city. और हम एक और शहर को बदल देते हैं। Amen. आमीन। All right, I'm just giving you the headlines now. और अब सिर्फ शीर्षक मैं आपको दे रहा हूँ। Cross my time, almost. Third point, तीसरी चीज, it's not enough to be baptized in the Holy Spirit once. और सिर्फ एक बार परमेश्वर का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया वो But काफी there नहीं is है। a command in the scripture, continue to be filled with the Holy Spirit. और ऐसा एक आदेश है बाइबल में कि हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा से लगातार भरते रहना होगा। Amen. आमीन। Continue to be filled. एक लगातार हमें भरना है। You know, when someone who has drinks,
और अगर कोई शराब पीता है all right, they don't have drinks only one time. और वो सिर्फ एक ही बार शराब नहीं पीते They have it again and again. और वो वापस पीते रहते हैं। All right, and the command in scripture says, do not get drunk in wine, but be filled with the Spirit of God. और आदेश जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम दारू के नशे में मत रहो पर Amen. परमेश्वर की पवित्र आत्मा की भरपूरियत में भर जाओ। Here people are praying in tongues, और परमेश्वर के ऐसे लोग बनो जो अन्य भाषाओं में बात करते हैं, reading the Bible, बाइबल पढ़ते हैं, encountering God's presence, परमेश्वर से मुलाकात करते हैं getting victories over sin, और पाप के ऊपर विजय पाते हैं। filled with the Spirit. परमेश्वर की आत्मा से लगातार Number भरते हो। 4, चौथी चीज led by the Holy Spirit. कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा तुम चलाए जाओ। You know, we were in groups discussing, and Shweta brought this and said, one of the things the Spirit of God does is He helps us to keep the commands of God and obey Him. और जब हम वहां पर मीटिंग में गुटों में बात कर रहे थे तो श्वेता ने एक बात हमें बताई कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा एक चीज में हमारी मदद करती है कि वो हमें परमेश्वर के तरीकों पे चलने पे मजबूर करती है। So one of the things that we're led by the Spirit, firstly, we easily keep the commands of God. और जब हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं तो परमेश्वर के आदेशों को Okay. हम आसानी से लागू कर सकते We're हैं not trying to keep the commands of God to get His blessing and love. You know, और हम Just कोशिश नहीं करते परमेश्वर की चीजों को करने के लिए ताकि हमें आशीष मिले। Amen. आमीन। In fact, Jesus said, if a man murders, that's sin. But I tell you, if you get angry in your heart, that is murder. और यीशु कहते हैं कि अगर तुमने किसी को का खून कर दिया तो वो पाप है, लेकिन अगर तुम अपने भाई से गुस्सा भी होते हो तो वो खून के बराबर है। So when we are led by the Spirit, we easily keep the commands of God, and in fact, we do much more than the commands of God. और जब हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं तो हम आसानी से परमेश्वर की चीजों को कर पाते हैं। All right, and Des brought so beautifully at the camp how we are led by the Spirit, not just the commands, but the Spirit leads us और into जब places. डेज ने हमारे बीच में बांटा कि किस तरीके से हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जा सकते हैं जब उसकी बातों को सुनते हैं। Now, this is a characteristic of God's people. और ये एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर के लोगों में होगी। Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. यीशु जो है परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवाज के द्वारा चलाए जा रहे थे जब उन्हें रेगिस्तान में सताव मिला। He didn't think, hey, this my brain's not working, maybe I'm being wrong here in thinking this. और उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि हाँ मेरा दिमाग नहीं चल रहा, शायद मैं गलत He सोच रहा हूँ। was led and he followed. और उन्हें पवित्र आत्मा ने वहां पे अगुवाई करी और वो पीछे पीछे चले। In Acts 8, Philip was led into the desert road so that he met that Ethiopian eunuch. और प्रेरितों के काम 8 में लिखा है कि फिलिप जो है उसे पवित्र आत्मा लेके गई उस रेगिस्तान में जहां पर वो Amen. उस खोजा से मिला। Romans 8:14 says, those who are led by the Spirit of God are sons of God. रोमियो 8:14 कहती है कि जो भी परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। And I want to challenge us और मैं आपको that we don't only live with our brains, we learn to live being sensitive to the Holy Spirit of God. और मैं आपको ये चुनौती देना चाहता हूं कि सिर्फ आप अपने जीवनों को ना जिए पर पवित्र आत्मा की बातों को सुनने में आतुर रहें। Amen. आमीन। How many of us have heard the Spirit of God, or sometimes just that little thought in our minds comes and say, I should go to that person's house, or say hello to that person who's walking by me on the road. Sometimes the thought comes. और कितने लोगों ने ऐसी पतली आवाज परमेश्वर की सुनी है या फिर एक सोच आपके दिमाग में डाली परमेश्वर ने कि मुझे उस इंसान से जाके मिलना चाहिए। That's the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा है। That should characterize the church. वो चीज जो है Amen. हमारी कलीसिया Can को we do आकार that? देनी चाहिए। Can you do that? That's क्या the आप new- कर सकते हैं? That's the new people of God. वो नए लोग हैं परमेश्वर के That's that baptism in the Holy Spirit. और वही इसका मतलब है परमेश्वर की पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना। This is what it's about. ये इसी बात The के बारे में Holy है। Spirit is with each of us. परमेश्वर की पवित्र आत्मा हम सबके साथ है। Yes, आमीन। you will change the world. Come on, let's do it. हम दुनिया को बदलेंगे, आइए उसे करते हैं। Finally, in Acts 4:31, और प्रेरितों के काम 4:31 में कहता है after they prayed, जब उन्होंने प्रार्थना करी the place they were meeting was shaken. और वो जगह जहां पर वो मिल रहे थे वो जगह हिलने लग गई। And it says this, and they were all filled with the Holy Spirit. और ये बोलता है कि वो सब लोग परमेश्वर के पवित्र आत्मा से something भरपूर में भर happened. गए और फिर And- कुछ हुआ And they spoke the word of God
boldly. और फिर उसके बाद परमेश्वर के वचन को उन्होंने निर्भीकता से बांधा। So you find it's not only on the day of baptism of the Holy Spirit. Now, again, the Holy Spirit is present in meetings and shakes up a whole church. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन पवित्र आत्मा आपको मिलेगी बपतिस्मा वाले दिन पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके लोगों को हिला देगी। Amen. That's why I want to encourage you, start running to prayer meetings because that's where the Spirit of God comes. और इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि प्रार्थना सभाओं में भाग भाग के आओ, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा वहां पर आपको भरेगी That's why you become a world changer. और वहां पर आप बनते हैं जो दुनिया को बदलेंगे। Somebody say amen. कोई तो आमेन कहो। There's no point in just traveling to a new place just for a job, better job. What a sad thing. और सिर्फ एक नई नौकरी के लिए किसी नई जगह पे जाना कितना जस्ट अजीब सी बात है। You know, go there, but let your primary reason be God. I want to take the kingdom in this place. और वहां पर जाइए, लेकिन आपके दिल की सबसे पहली पुकार ये होनी चाहिए कि परमेश्वर मैं उस जगह को I बदलना want to be चाहता हूँ, part of a church there. वहां पर मैं एक कलीसिया का भाग बनना चाहता हूँ। Amen. आमेन। Place. So, church, कलीसिया, let's be the new people of God. आइए नए लोग बनेंगे हम परमेश्वर के।